جناب عالیہ جناب کلثوم اور تمام پاک بیبیوں کو مجلس میں دعوت دینے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین بلقاء اسم محمد صلوات الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین سخن گزار منبر سلونی شاہ کل کفا عروۃ الوثقی خیر المومنین امام المتقین اسد الزاہدین سخن گزار اولیاء نور اللہ عین اللہ باب اللہ جنب اللہ حسن اللہ اسد اللہ من غالب آقا جانم علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری ایاک نعبد و ایاک نستعین اہل البیت طیبین الطاہرین ثم الصلاۃ والصدیقۃ الکبریٰ الراضیۃ المرضیہ ام الکتاب ام القرآن ام الحسنین ام ابیہا لفاطمۃ الزہراء صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا لعنت اللہ اعداء مجمعین اما بعد قال سبحان فی قرآن المجید فرقان الحمید سلامتی امام زمانہ کے لیے ہاتھ بلند کیجیے گا اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن عالم سے مالکان جنت سے جناب سیدہ سے سلطان کربلا سے شہنشاہ نجف سے امن کے امام سے اور وقت کے قائم امام سے یا میرے مولا یہاں جو ذکر کریں گے یہاں جو پرسداری کریں گے یہاں جو نعرے لگائیں گے ان کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا یا میرے مولا جو مجمع میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے اٹھنے نہ ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل عطا فرمانا ہر ایک کے دل میں جو جائز حاجات ہیں صدقہ ذکر علی تمام کی حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا بانی محفل کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمانا مولا ان کے دل میں اپنے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے جو جائز حاجات ہیں تمام حاجات کو ذکر حسین ذکر علی کے صدقے میں قبول و منظور عطا فرمانا ہمیں اتنا توفیق دینا کہ ہم ہر ذکر یہاں پہ بسلسلہ حسین ہو بسلسلہ علی ہو بسلسلہ جناب سیدہ ہو ہر سال ہر مہینہ ہر مرتبہ یا میرے مولا توفیق عطا فرمانا کہ مل بیٹھ کے یہاں ذکر کر سکے جب تک زندہ ہیں آخری سانس تک علی علی حسین حسین کرتے رہے مرتے وقت یا میرے مولا تمام کو کلمہ نصیب عطا فرمانا قبر کی پہلی رات تمام عاشقان حسین کو دیدار علی نصیب عطا فرمانا جو مومنین مومنات یا میرے مولا بیمار ہیں جناب سید سجاد کے صدقے میں بی بی سہرا کے صدقے میں تمام کو شفاء کلی نصیب عطا فرمانا میرے ایک مومن بھائی بیمار ہیں جناب سید سجاد کی جوانی کے صدقے میں ان کے ہتھ کڑیوں کے صدقے میں ان کو شفاء کلی نصیب عطا فرمانا جو نوجوان بے روزگار ہے جوانی علی اکبر کے صدقے میں شہزاد قاسم کے صدقے میں تمام کو شاندار سے شاندار روزگار نصیب عطا فرمانا جن کے روزگار ہے یا میرے مولا ان کو مزید ترقیات نصیب عطا فرمانا جن گودیوں میں اولاد ہے تیری عطا ہے ان کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھنا جن میں نہیں ہے ان کو شہزادی سکینہ کا شہزاد الیسر کا صدقہ خیر و خیریت سے ماتے بھی بیٹا بیٹی نصیب عطا فرمانا یا میرے مولا ایک مومنہ ہے کینسر کی مریضہ ہے دعا ہے جناب سیدہ کے صدقے میں ان کے توق کے صدقے میں یا میرے مولا ان کی زخمی پہلو کے صدقے میں جناب سہرا کے صدقے میں بادشاہ علی کے ضربت کے صدقے میں ان کو شفاء کلی نصیب عطا فرمانا
या मेरे मौला जिन बहनों के नसीब बंद है, बीबी कुबरा के नसीब के सदक़े में, बीबी सकीना के नसीब के सदक़े में, तमाम के नसीबों को जल्द अज जल्द खोल के सिर्फ अली अली करने वाला बंदा नसीब अता फरमाना। हर अली वाले को कनीज़ ज़हरा नसीब अता फरमाना। या मेरे मौला मजमा मेरे सामने बैठे हुए हैं, अगले बरस ये मजमा मेरे साथ या मेरे मौला हम यहाँ से जाके रमज़ान के दिनों में या मेरे मौला नजफ़ में हुसैन के, नजफ़ में अली की मजालिस मना सके। या मेरे मौला जो मोमिनीन मेरे सामने बैठे हुए हैं या जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, जिनके दिलों में अरमान है, कुछ लोगों ने मुझे खसूसी दुआ के लिए कहा है, या मेरे मौला जिसके दिल में ये अरमान है, या मेरे मौला मासूमीन की जितनी ज़ियारत है हमारे गुनाहगार आंखों और पाँव को सख्त अता फरमाना कि वहाँ बार बार जाके तमाम के रोज़ों की दीदार कर सके। खसूसन मेरे एक दो भाइयों ने मुझे इल्तिजा की है कि हमारे लिए खसूसी दुआ करे कि हमें 40 पे ज़ियारत हुसैन नसीब हो। या मेरे मौला मेरे दोनों भाइयों को जल्द अज जल्द ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब अता फरमाना। या मेरे मौला जिन्होंने इम्तिहानात दिए हैं, इम्तिहान सकीना के सदक़े में तमाम शिफ़ाए कुली नसीब अता फरमाना। वारिस कायनात के ज़हूर में जल्द अज जल्द ताजील अता फरमाना। हम इनके नेक और ख़ास बंदों में तू शुमार अता फरमाना। इमाम का साया तमाम आशिकान हुसैन पर सलामत और क़ाइम व दायम रखना। या मेरे मौला जिन्हों की बैठी हुई है दुआ के लिए हाजतमंद है, या मेरे मौला इनको बल्कि इन समेत जितनी भी लोग मैं एक बार फिर कहूँगी आज की रात के सदक़े में, या मेरे मौला जो जो ख्वाहिशमंद है वो करबला की ज़ियारत को जा सके, तमाम को या मेरे मौला हुसैन की नूरी महल की दीदार नसीब अता फरमाना। या मेरे मौला जिसके दिल में ख्वाहिश है मरने से पहले इमाम ज़माना का दीदार नसीब अता फरमाना। मुझ समेत जिसके दिल में अरमान है, या मेरे मौला मौत तो आनी है, मौत तो आती है, हर हाल में आएगी, हमें शहादत की मौत नसीब अता फरमाना। एक सूरह फातिहा अपने रिश्तेदारों के लिए पढ़ दीजिए। है जो भी इम्तिहानात हैं जनाब सकीना के इम्तिहान के सदक़े में, जनाब ज़ैनब के इम्तिहान के सदक़े में, इसको शानदार से शानदार कामयाबी नसीब अता फरमाना। बल्कि मेरे जितने भी ग्रुप है आशिकाने बीबी सकीना का, यहाँ जो खिदमत करते हैं, यहाँ जो जिक्र करते हैं, या मेरे मौला इन्होंने इम्तिहानात दिए हैं, इनके दिलों में जिस किस्म की जायज़ हाजात है, इनकी तमाम हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाना। इनको या मेरे मौला जो जिस बुलंदी पे है, जिस मिंबर को अल्लाह ताला ने इनको अता किया, या मेरे मौला इस बुलंदी को तू लाज़वाल कर दे। एक दुरूद पढ़ दें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद एक सूरह फातिहा सानह पेशावर में जितनी भी शुहदा शहीद हुए थे और ख़ुसूसन शहीद सरदार वक़ार हुसैन थे। या मेरे मौला मोमना बैठी हुई है, अहले सुन्नत मोमना है, लेकिन हमारे महफिलों में आती है, दुआ के लिए हाथ उठा रही है। मौला तू हमें शर्मिंदा ना करना, इसके दिल में अपने लिए, अपने भतीजों के लिए जिस किस्म की जो भी जायज़ हाजात हैं, इसकी हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाना। बड़ी मवद्दत की बात होती है कि हमारे महफिलों में अहले सुन्नत भाई, अहले सुन्नत बहनें मौजूद होती हैं और हमारा जिक्र सुनने के लिए आती है, हम इनके शुक्रगुजार होते हैं। मैं दुआ करूँगी मौला तू हमें शर्मिंदा ना करना, इसकी तमाम हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाना, इनकी तमाम मुश्किलात को आसानी में तब्दील अता फरमाना। मैं कल बता चुकी थी कि मेरे बहुत ही प्यारे भाई शहीद सैयद हैदर रिजवी रोड एक्सीडेंट में खालिक हकीकी से जा मिले हैं। पहले दुआ करूँगी और फिर कुछ उनके ही अशार में उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ, उनको हदिया करना चाहती हूँ कि उनके खुद लिखे हुए अशार जो बड़े शान से इस मेंबर से वो पढ़ते थे, या मेरे मौला बड़ा ही वो खुश नसीब है। कल रात मैं सोच रही थी कि जो उन्होंने आखिरी मजलिस खैरपुर में पढ़ा था, शायद मेरे बादशाह अली को वो मजलिस उनकी इतनी पसंद आ गई थी कि अगली मजलिस पे जाने से पहले बादशाह ने उसको अपने दर पे बुला के ये कहा कि आके मेरे दर पे मेरे ही शहादत, मेरे दर पे मेरे हैदर, तूने आके मेरे दर पे मेरे मासूमीन के सामने पढ़ना है। बड़ा ही खुश नसीब था कि मजलिस से निकल के मजलिस के लिए जाने वाला था और मौला ने शहादत की मौत नसीब की है। बस दुआ इतनी करूँगी, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन वो बहुत खुश नसीब है। मैं इतना दुआ करूँगी या मेरे मौला जनाब शहजाद अली अकबर की जवानी के सदक़े में, या मेरे मौला उसको ग़ुलामान अली अकबर में तू शुमार अता फरमाना, बादशाह हुसैन के ग़ुलामों में उसे आला मकाम अता फरमाना, या मेरे मौला वहाँ इतना आला मकाम अता फरमाना कि जिस तरह यहाँ पे सुल्तान शुअरा का लक़ब मिला था, वहाँ बादशाह अली उसे खुद सुल्तान शुअरा का लक़ब अता फरमाए। एक सूरह फातिहा पहले उनके लिए पढ़ दीजिएगा, उसके बाद में कुछ अशार उनके पढ़। हैदर रिजवी लिखते हैं कि अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल की, अल्लाह की अता है मवद्दत बतूल
کی محفوظ ہر طرح سے امانت کیا کرو. اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو. اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکے, جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکے, اس شخص پہ نماز میں لعنت کیا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو سلسلہ ہے مر کے ملوں گا علی سے میں, جو سلسلہ ہے مر کے ملوں گا علی سے میں, واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا. جو سلسلہ ہے مر کے ملوں گا علی سے میں, واللہ تب سے موت کا خطرہ چلا گیا. اور دونوں ہی جب علی ہے, دونوں ہی جب علی ہے, دونوں ہی جب علی ہے, تو اپنی نماز سے تو نے علی نکالا ہے, اللہ چلا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے, جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے, وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے. جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے. ہم کوئی بھی عبادت علی کے بغیر نہیں کرتے, ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں علی کو شامل کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, حیدر رضوی کہتے ہیں کہ جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے, وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے. اور ایک بار بھی علی پہ جو بونکا ہو عمر میں, جس کی ہر ایک نماز میں حیدر کا نام ہے, وہ ذات کا کوئی بھی ہو اس کو سلام ہے. اور ایک بار بھی علی پہ جو بونکا ہو عمر میں, اس شخص کی نماز جنازہ حرام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنے عوام کو جگانے کے لیے, جانتی ہوں دل میں مودت اہل بیت ہے, مودت حیدر ہے, یہاں آئے ہو تو علی کی محبت ہے دلوں. لیکن اس محبت کو, اس مودت کو میں نے باہر نکالنا ہے. چہرے میں نے دیکھنا ہے, بولنا آپ لوگوں کا کام ہے. مجھے داد نہیں چاہیے, کیونکہ مجھے جو اجر دیتا ہے وہ ذات دیتا ہے. لیکن اگر دل میں علی ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں, دل کھل جاتا ہے, اور دل پٹنے کو آتا ہے کہ جب علی کا ذکر آ جائے تو کب ہم علی کا نام اتنا بڑھ چڑھ کے لے لیں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی ولی اللہ دنیا میں آج بھی قائم ہے. اس کو مٹانے کی کوشش بہت کی گئی ہے, ہر انداز سے کی گئی ہے, محمد کے دور سے کی گئی ہے, آج تک کی جا رہی ہے. لیکن ہم نے علی سے وعدہ کیا ہے, جان چلی جائے ہمیں منظور ہے, ہم نے علی کو نہیں چھوڑنا ہے. میں نے اپنے عوام کو جگانا ہے, میں نے دلوں سے آج علی کی صدا نکالنا ہے. آج دن ہے علی کا تو بولنا ہے صرف علی علی, چاہے ساری رات گزر جائے. آج سونے کی رات نہیں ہے, آج جاگنے کی رات ہے. یہاں جتنی دیر بیٹھنا ہے ہم بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ آج کا دن ہم نے منتخب کیا ہے صرف اور صرف بادشاہ علی کے نام. میں نے نعرہ لگانا ہے, اور نعرہ لگانے کے بعد مجھے اتنا بلند آواز آنا چاہیے کہ وہ آواز جب تک میں ممبر پہ کھڑی ہوں میرے کانوں میں گونجتے رہے. مل کے بولیے گا, جو بھی بولے گا دل کی مراد پائے گا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولنا ہے نعرہ, آخری سب تک ہاتھ اٹھانا ہے, آخری سب تک نعرہ رمضان. میرے اور آپ کے علی فجر کے وقت مسجد کوفہ میں نماز پڑھیں. فضائل پڑھنا ہے, مصائب نہیں پڑھنا, اس لیے توجہ اس طرف رکھنا. مصائب پہ آؤں گی اور طویل پڑھنا ہے مصائب, لیکن صرف کچھ الفاظ میں نے آپ لوگوں کو حقیقت واضح کرنا ہے کہ علی نے سجدے میں جا کے یہ کیوں کہا کہ فستو برب الکعبہ. خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے. علی نے جنگ احد لڑی, جنگ بہت کیا, جنگ بدر کیا, جنگ حنین کیا, جنگ صفین کیا, جنگ جمل کیا. ہر جنگ علی کی وجہ سے جیتا, ہر جنگ مسلمانوں کو جو فتح ہوئی علی کی وجہ سے ہوا. علی نے تب نہیں کہا کہ فستو برب الکعبہ, کہ اللہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. غدیر میں علی کے ہاتھ کو اٹھا کے رسول نے کہا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا. تب علی
کو 1.25 लाख के मजमे में मोहम्मद ने कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला है, उस वक़्त अली ने क्यों नहीं कहा कि फस्तो में रब्बिल काबा। अली को खिलाफत मिली, अली ने पहला जीन छोड़ा, दूसरा जीन छोड़ा, तीसरा जीन छोड़ा, और चौथे जीन पे जहाँ मोहम्मद बैठते थे वहाँ अली को बैठने का रुतबा मिला, वहाँ अली को खड़े होकर खुतबा पढ़ने का रुतबा मिला। तब अली ने क्यों नहीं कहा कि फस्तो में रब्बिल काबा। मेराज की रात जब मोहम्मद गए पर्दे के पीछे, मोहम्मद ने मिलाया है हाथ अल्लाह से। अब ये कहते हैं अल्लाह का हाथ था वो यदुल्लाह का, जानते हो यदुल्लाह कौन था? तब अली ने क्यों नहीं कहा कि फस्तो में रब्बिल काबा। हिजरत की रात इतने सारे मुसलमानों में से मोहम्मद ने अली को कहा कि मुझे तुझ पे भरोसा है, सुबह मेरी रात मेरे बिस्तर पे सो के अमानतें दे के वापस आ जाना। तब अली ने क्यों नहीं कहा कि फस्तो में रब्बिल काबा। जब अली को ज़र्ब लगी, जब अली पे कत्ल का वार किया गया, तब अली ने क्यों कहा फस्तो में रब्बिल काबा। अल्लाह की कसम आज अली कामयाब हो, क्योंकि ये बना बनाया प्लान था। कातिल कौन है ये मैं जानती हूँ, शायद यहाँ से 2 साल पहले मैंने बताया भी था। जिनको याद होगा मेरी बातें तो उनको पता होगा कि असल कातिल कौन था। ये जो अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम है ये थराई का कातिल था। इसे लालच दिया गया था कि तुम अली को कत्ल कर देना, हम तुझे ये जो तू मांगेगा हम तुझे देंगे। अली आए हैं फजर के वक़्त नमाज पढ़ने के लिए, सजदे में सर है अली का। अब दुनिया चाहती थी कि मोहम्मद के दौर से अली वलीउल्लाह को ख़त्म कर दिया जाए। मोहम्मद के बाद जो अली अली के नारे लगते हैं, हर इबादत में अली को मोहम्मद ने शामिल किया है, इन इबादतों से अली को निकाल दिया जाए। बस ये प्लान बनाया गया कि वक्त नमाज अली पर ज़र्ब लगाया जाएगा, अली पर वार किया जाएगा। अली ज़र्ब की वजह से नमाज छोड़ के उठ जाएंगे। नमाज छोड़ने के बाद हम ये कहेंगे कि अली ने नमाज छोड़ दिया था, लिहाजा नमाजों से अली को निखार दिया। बस ये मकसद था। और इस मकसद के लिए जब खातिर को तलवार दिया गया जहर से आलू, बिजा के वक्त फजर में सजदे के वक्त अली पे वार किया जाए। और वल्लाह बाखुदा ये मेरा वो बादशाह है जिस पे वार भी किया गया तो पीछे से किया गया, किसी में इतनी जुर्रत ना दी कि आगे से आके अली पर वार कर। आप सलामत रहें, आप खुश रहें। यहाँ से उठने ना पे जनाब सैयदा आपकी तमाम हाजात को कबूल करो। ये जो हाथ उठते हैं, ये जो खैरात मिलती है, ये मुझे नहीं मिलती, ये आप लोगों को मिलती है। मैं यहाँ छोटी सी कनीज़ हूँ जो मुझे मौला ने नौकरी दी है, मैं बस वो अदा करने यहाँ पे आई हूँ। अज़ादार की बड़ी अहमियत होती है। यहाँ बैठे जो शख्स में बैठे हुए बोलते वक्त जो दुआ मांगे उसे वो दुआ ज़रूर कबूल होती है, लेकिन बस शर्त ये है कि पहले मार्फत के लिए पहले खैरात हासिल करें, और खैरात के बाद जब अली वो खैरात अता करता है तब आप बोलते हैं जो दुआ मांगते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। अब क्या कहा अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम को कि अली पे पीठ पीछे से वार करना है, अली को सजदे में आपने ज़र्ब लगानी है। जैसे ही अली पे वार किया गया, अब अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम जैसे ही खड़े हैं, उसने जैसे ही वार किया, सजदे में है अली, अली की आवाज आई फस्तो में रब्बिल काबा, रब्बिल काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। इतना कहना था। अभी नमाज में शरीयत आप सब जानते हैं कि नमाज में ना हम अपनी मर्जी से हिल सकते हैं और ना हम अपनी मर्जी की कलमात अदा कर सकते हैं। जो नमाज में पढ़ना है वही कलमात हमने अदा करने हैं। बादशाह अली वो वाहिद इंसान है कि जिसने नमाज में हरकत भी की है और जिसमें नमाज में अपने कलमात भी अदा किए हैं। अली मस्जिद कूफा में खड़े थे, मेरे अरब के अली साइल आया, ज़कात के लिए सदा बुलंद की, मेरे अरब के आका ने हाथ आगे करके अपनी अंगूठी दे दी। और यहाँ वक्त फजर जब अली पे ज़र्ब लगाया गया तब अली ने अपने कलमात अदा किए नमाज में कि फस्तु बिरब्बिल काबा, लेकिन अल्लाह ने फिर भी नहीं कहा कि अली की नमाज मकरूह हो गई है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि अली अगर नमाज में भी कुछ बोलता है या नमाज
यहाँ अली ने कहा फस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। इतना कहना था, अब ये अल्फाज आए थे, वो जो खातिल था हाथ में तलवार थी, इतना खौफ था अली का कि अली के एक आवाज से कातिल भाग ना सका बल्कि हाथ से तलवार छूट गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाथ से तलवार छूट गई और मोहाली सजदे में है और सजदे में अली कह रहा है मुसल्ले से कि ए नवाज तू गवाह रहना, मुझ पर वार किया गया, मुझ पर कत्ल का प्रोग्राम बनाया गया, मुझ पर ज़र्ब लगाया गया, लेकिन मैं अली सजदे से सर ना उठा सका। मैं आज भी इस जख्मी हालत में तेरे लिए सजदे में हूँ। अरे सजदा था, अरे सजदे ने खूबरे आलूद अली का पेशानी पे बोसा लेने के बाद कहा, ए अली तूने मुझ पर एहसान किया है कि मेरा मान तुमने रखा है। अब जब तक तूने सजदा किया, खुदा की कसम सारी जिंदगी मेरा नमाज कायम रहेगा, मैं मुसल्ला कायम रहूंगा। अली कहता है मैंने तेरा मान रखा, मैंने सजदे से सर ना उठाया, मैंने आज भी जख्मी की हालत में तेरे लिए सजदा किया है। मुसल्ला कहता है मैं भी तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद जिसके दिल में अली नहीं होगा वो नमाज पे खड़ा होगा। मैं बादशाही है अली इसमें इलाही है, हर एक मीज़ान में तोला ज़मां के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला अली मौला। नारे मिलके 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 जवाब देना है। ना कुछ चेहरे बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, कुछ चेहरे बड़े सोए हुए दिखाई दे रहे हैं। ना जाने पता नहीं वो किस जंगल से आए हुए हैं जो अली का जिक्र हो रहा है और चेहरे बड़े अफसरदा लगे हुए हैं। आप बताती चलो, खुदा ने खुद कहा है अली नमाज में सजदे में सर दे चुका है। अली ने कहा नमाज तू याद रखना, तू हमेशा इस बात को याद रखना, मैंने तेरे लिए सजदे में सर दिया है। नमाज कहता है मैंने भी तुझसे वादा किया है, जिसके दिल में अली नहीं होगा वो नमाज पे आएगा, मैं लानत भेजूंगा। अभी नमाज अली से गुफ्तगू कर रहा था, कुरान बीच में बोल पड़ा। कुरान है अली का जाकिर, कुरान है अली का कसीदा। यहाँ कुरान बोलने लगा है, या अली तू नमाज से वादे कर रहा है, आज मुझसे भी वादा ले ले। तूने नमाज में सर दिया, नमाज में बोला ही वो जाता है जो मेरे कुरान में लिखा हुआ है। अरे नमाज कहता है कि मैं लानत भेजूंगा, आओ मैं कुरान भी वादा करता हूँ कि जिसके दिल में नहीं होगा वो कुरान सामने रख ले, मैं कुरान लानत बेचता जाऊंगा। मैं कुरान लानत बेचता जाऊंगा, जिसके दिल में अली नहीं होगा वो सामने लाख कुरान पढ़े। और कुरान खुद कहता है कि जब मेरे सामने कोई बंदा मुझे खोल के रख देता है, मैं उसका चेहरा पढ़ने लग जाता हूँ, मैं उसके चेहरे की तफसीर पढ़ने लग जाता हूँ। अरे तफसीर में अगर अली मौजूद होगा तो मैं उस पे लानत नहीं भेजूंगा, मैं उसको समझ में आऊंगा। लेकिन जिसके दिल में अली नहीं होगा वो बार बार पढ़ता जाए, वो हिफ्ज करता जाए, मैं उस पे लानत ही भेजूंगा। क्या कहने, खुदा ने खुद कहा है। अरे नमाज ने क्या कहा? अरे नमाज कहता है जिसके दिल में अली न हो वो नमाज पे आ जाए, मैं लानत भेजूंगा। कुरान कहता है जिसके दिल में अली न हो, जो मुनकर अली हो, वो कुरान हाथ में उठाए, मैं लानत भेजूंगा। अरे हज पे जाओ, हज कहता है जिसके दिल में अली न हो, काबा कहता है मैं लानत भेजूंगा। अरे रोजा कहता है भूख हड़ताल कर लो, जो जिसके दिल में अली न हो मैं रोजा लानत भेजता हूँ। अरे यहाँ तक के खुद नबी कहते हैं कि जिसके दिल में अली न हो वो जितना भी मोहम्मद
फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। नमाज ने वादा किया अली से और अली ने अल्लाह से 19 रमज़ान को कुछ मुआहदे किए। अल्लाह ने अली से कहा कि ए अली, तूने मेरे लिए सजदे में सर दिया, ये चाहते थे कि सजदे में सर तू दे और नमाज छोड़ दे। हम दीन इस्लाम से अली को निकाल देंगे, हम सारी जिंदगी नमाज को निकाल देंगे, लेकिन अली तूने ये कायम कर दिया कि जब तक तू है तब तक दीन में नमाज रहेगा। अब अल्लाह ने अली से वादा किया कि ए अली, जब तक तेरा कोई जिक्र करेगा तब तक मैं उसकी हर इबादत को कबूल करूंगा। जब जब किसी ने तेरा जिक्र छोड़ दिया मैं उसकी हर इबादत को कबूल करना छोड़ दूंगा। यहाँ अल्लाह ने अली से मुआहिदा किया, यहाँ अली ने भी अल्लाह से मुआहिदा किया कि ए मेरे मालिक, मैं भी तुझसे वादा करता हूँ कि जब तक कोई नमाज न पढ़ेगा, तेरी इबादत न करेगा और मेरी नौकरी करता जाएगा, मैं उसकी नौकरी कबूल नहीं करूंगा। लाख वो आके पढ़े, लेकिन अगर तेरी इबादत न करे मैं अली उसकी नौकरी कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह और अली के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया और उसके बाद अली ने सजदे में सर देकर ये साबित कर दिया कि जब जब जहां जहां भी इस्लाम पर मुसीबत आएगी मेरे मानने वाले अपना जान तो जरूर देंगे, लेकिन अली वलीउल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। बेशक बेशक। आओ आज हम भी वादा करते हैं, आज का दिन है अली से वादा करने का। कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, माल चली जाए, भूखे मारे जाए, प्यासे मारे जाए, अरे रिश्तेदार हमें छोड़ दे, अपने पराए साथ देना ना, ये तो मुमकिन नहीं है कि हम कहें कि हमें इज्जत मिले, हमें शोहरत मिले, हमें प्रोटोकॉल मिले, हमें लोग अपने घरों के दस्तरखानों पर दावत दें और इन तमाम के बाद भी हमारे दिलों में अली मौजूद हो, हम कहें कि हम अली वलीउल्लाह वाले हैं। ऐसा हो नहीं सकता। जिसके दिल में अली वलीउल्लाह का अकीदा कायम हो जाता है उसके दिल से मुनाफिकत खत्म हो जाती है, और जब मुनाफिकत खत्म हो जाती है तब वक्फे वक्फे से अपने पराए सब साथ देना छोड़ जाते हैं। लेकिन हमने वादा किया है, ए अली आज की रात तुझसे मैं वादा करती हूँ, मुझ समेत जो भी वादा करना चाहता है वो दिलों में वादे करते जाए। अली कुछ भी हो जाए, अपने साथ छोड़ जाए, रिश्तेदार साथ छोड़ जाए, लोग हमें बुलाना छोड़ दे, लोग हमें सलाम करना छोड़ दे, अरे हम पे भूख हड़ताल आ जाए, हम पे खाना पीना बंद कर दिया जाए, कुछ भी हो जाए, अली वलीउल्लाह को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बेशक बेशक। कुछ भी हो जाए अली वलीउल्लाह को कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसी 19 रमज़ान को ये वो रात थी जो औलाद अली पर क़यामत की रात। मैंने शहादत नहीं पढ़ना क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं। मैंने बस ज़ैनब के, जनाब कलसूम के, जनाब अब्बास के बयान पढ़े। एक मन्नत करूंगी, सिर्फ मन्नत करूंगी, आगे आप सबकी अपनी मर्ज़ी। हम हर रात सोते हैं, सुकून से सोते हैं, लेकिन मन्नत ये है आज की रात ज़ैनब जागी हुई, आज की रात कलसूम जाग रहे। कोशिश करना आज की रात सोना नहीं। जितना अली का जिक्र कर सकते, जितना अली की इबादत कर सकते, जितना अली को पुरसा दे सकते, सहरी करके अली के लिए जागे रहे। और एक छोटी सी मन्नत और, हम सहरी करते हैं, सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं, आज की सहरी सिर्फ 2 घूंट पानी से, 2 घूंट नहीं तो 1 गिलास पानी। सारा दिन 21 का दिन भूख हड़ताल से रहना। इमामुल मुत्तकीन, असदुल ज़ाहिदीन, खैरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन हमसे इस दुनिया में हमें तन्हा छोड़ के जा चुके। बहुत ही गम वाली रात है। हम यहाँ से निकलेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बोलेंगे,
لیکن ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ بولنے سے زیادہ تصور کیا. میں جب کربلا گئی میں نے دیدار کم کیا، میں نے تصور زیادہ کیا. میں جس جگہ جس حرم پہ گئی میں نے وہاں وہ سوچا جو آل محمد کے مسائل. میں جب ممبر پہ پڑھتی ہوں یا میں کسی کو ممبر سے سنتی ہوں، میں رونے سے زیادہ، میں سننے سے زیادہ تصور کرتی ہوں. ذرا ایک لمحہ سوچنا، خدا سب کے باپ کو سلامت. میں ہاتھ جوڑ کے اس جملے کا معذرت چاہوں گی، لیکن یہ جملہ بولنا میرے لیے بہت ضروری ہے. عید قریب ہو، خدا کسی اولاد کو یتیم نہ. عید قریب ہو، خدا کسی اولاد سے اس کے باپ کا سایہ نہ. آج کی رات یہ سوچنا 10 دن بعد عید ہے اور علی کی اولاد سے علی کا بابا چن گیا. گھر میں جنازہ پڑا ہو تو کیا نیند آتی ہے؟ نہیں نا. خدا کسی کے گھر میں جنازے نہ نکالے، لیکن بس خود کو ایک بار اپنوں کو تصور کرنا کہ اگر کسی کے گھر میں جنازہ رات کے اندھیرے میں پڑا ہو تو کیا اس کی اولاد کو نیند آئے گی؟ ہائے میں صدقے، ہائے میں واری. زینب بیٹی ہے بابا کے پاس، کلثوم بیٹی ہے بابا کے پاس. بابا آج کی رات ہم سے بولے، بابا ہمیں بتائیں آپ کو کہاں درد ہو رہا ہے. عباس بہت چھوٹا ہے، اس چھوٹی عمر میں یتیمی نہیں سہ پائے گا. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہر باپ کا سایہ چلا جاتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے اولاد پل تو جائے گی لیکن در بدر ہو جائے گی. 17 رمضان مسجد کوفہ کے منبر پہ میرے اور آپ کے بادشاہ علی بیٹھا. یہ چہرے مجھے اب بھی دیکھ رہے ہیں. میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں، رونا نہیں آتا سروں کو نیچے کر کے رونے کی کوشش. خدا کی قسم آل علی پہ بہت مشکل ہوا. 17 رمضان میرے اور آپ کے بادشاہ علی منبر کوفہ پر خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس علی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کوفے والے پریشان ہو گئے. یہ وہ علی ہے جو اتنا بہادر ہے، جس نے ہر مصیبت کا، ہر جنگ کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. آج خطبہ دیتے دیتے علی کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ علی کوفہ کے منبر پہ خطبہ دے کے روتے جا رہے ہیں. کوفے والوں نے کہا یا علی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ علی بلا تشبیہ اٹھے ہیں منبر کوفہ سے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں کوفے والوں آج مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو. یا علی بولے کیا جواب دینا ہے؟ علی کہتا ہے میں نے کبھی کسی قیدی کو تنگ کیا ہے کیا؟ میں نے کبھی کسی یتیم کو مارا ہے کیا؟ میں نے کبھی کسی یتیم پر ترس نہیں کھایا ہے کیا؟ کہتی ہے یا علی آپ نے تو ہم پہ ہمیشہ ترس کھایا، ہم پہ ہمیشہ رحم کیا ہے. علی کہتا ہے تم سو رہے ہوتے تھے، میں کاندھے پر لاشن رات کے آدھی راتوں میں یتیموں کے گھر پہنچاتا تھا. کوفے والے کہتے ہیں مانتے ہیں آقا، لیکن یہ باتیں بول کیوں رہے ہو؟ علی رو کے کہتے ہیں کبھی کوفے میں قیدی آ جائے پر پتھر نہ بیچنا. کبھی کوفے میں قیدی آ جائے انہیں تماچوں سے نہ مارنا.
शहादत हुई, मैं शहादत पर नहीं चलती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अली की शहादत हुई, अली का जनाजा पड़ा हुआ है, ताबूत आने वाला है, मेरी इल्तिजा है, मेरी मन्नत है और अरमान था कि कूफे वाले पुरसादे ये जो सवाल करते हो ना, ईद क्यों नहीं मनाते हो, अली का 10वां भी अब मनाने लगे हो। आज मैं बताती हूँ, हम अली का 10वां नहीं मनाते, हम अली का 10वां नहीं मनाते। अरे कूफे वाले, ईद के दिन पर हमारा कोई मर जाता है ना, तो पहला काम होता है, अरे करीब करीब जितने लोग मरे हैं पहले उनको पुरसा देने जाए, फिर ईद की मुबारक देंगे। अरे ज़ैनब कहती है बाबा के बाद पहली ईद थी, ज़ैनब कहती है सारा दिन बैठी रही, कूफे वालों ने पुरसा नहीं दिया। हाय सदके, ईद का दिन आया। अरे हर बेटी का मान होता है उसका बाप का घर। हर ईद वाले दिन कहते हैं बाप आएगा, बाप से मिलने आएंगे, अरे बाबा आएंगे ईदी देंगे। अरे ज़ैनब कहती है हसन आए हैं अंदर, अली का अमामा पहन के, अली की अमा पहन के, अली की दस्तार पहन के, अली का ज़ुल्फ़िकार लेके। अरे हसन आके कहते हैं ज़ैनब बाबा नहीं है, बता भैया से ईद के दिन क्या चाहिए। अरे ज़ैनब कहती है मैंने तो बाबा से कभी कुछ नहीं मांगा। हसन कहता है मेरा मान है, बता तुझे क्या चाहिए। अरे ज़ैनब कहती है मैं जो मांगूंगी तू पूरा करेगा। हसन कहता है शबीर की कसम, जो मांगेगी तुझे दे दूंगा। तड़प के ज़ैनब कहती है भैया 5 साल के अलमदार को बुलाओ, बाबा के अबा पहनो, बाबा का कमा पहनो, बाबा का दस्तार पहनो, अलमदार से कहो जरा कूफे के शहर में घूमे, मुझे बाबा की याद आ रही है, मुझे बाबा की याद आ रही है। हाय मैं सच्चे, हाय मैं इस कुर्बान ज़ैनब की यतीमी पे। और हर बेटी का अरमान होता है, अरे बाप ईद वाले दिन आएगा, बाप से कहूंगी ये चाहिए वो दे दो, ये करना है, खुदा किसी बेटी को यतीम ना करे। अरे ज़ैनब कहती है भैया बाबा की याद आ रही है, अब्बास से कहा इस अंदाज से कूफे की मस्जिद में घूमे जिस तरह मेरे बाबा जाते थे। मैं एक बार बाबा अली को देखना चाहती हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह